کیا ہو گیا ہے؟ کوڑ ہو گیا ہے. اور جب اسے کوڑ فیل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر جاتا ہے, اپنے بچوں کو وہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھرانے میں چلے جاؤ, اور وہ اکیلا کہاں چلا جاتا ہے؟ کوڑیوں میں. کوڑیوں کے دستور, اسرائیل کے دستور کے مطابق جس شخص کو کوڑ ہو جاتا وہ کاہن کو دکھاتا, اور کاہن اسے علاقے سے باہر بھیج دیتا, اور وہاں پر بہت سارے اور کوڑی جمع ہوتے, اور جب انہیں وہ گھر والے کھانا دے کر آتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا وہ کھانا ایسے ہی ریسیو کر لیتے تھے؟ ایسے ریسیو نہیں کرتے تھے وہ کھانا. اس کھانے کے اوپر جانور جھپٹتے تھے, اس کھانے کے اوپر پرندے جھپٹتے تھے, وہ اس کو کھانا کھانے نہیں دیتے تھے. اور وہ کوڑی جو کوڑیوں کے درمیان تھا, کوڑیوں سے مار بھی کھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جیل میں کوئی بندہ چلا جائے تو وہ جیل میں مار کھاتا ہے پہلے, اور پھر وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے. اور جب کوڑیوں میں کوئی کوڑی چلا جاتا تھا تو کوڑی بھی اس کو دوسرے کوڑی مارتے تھے, کیونکہ ان کی ایک یونٹی بنی ہوتی تھی. اور جب کوئی نیا کوڑی آ جاتا تھا تو وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ اذیت دیتے تھے, مارتے تھے, تاکہ یہ ہماری بات مانے, جس طرح سے ہم کہیں اس طرح سے یہ یہاں پر رہے. تو اس کوڑی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن یہ شخص خدا کو جانتا تھا. یہ شخص کیا تھا؟ خدا کو جانتا تھا. اس کے اندر خدا کی محبت موجود تھی, اس کے اندر خدا کے بارے میں پتا تھا اسے کہ وہ کتنا بڑا عظیم خداوند ہے. وہ سب کچھ کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. اور ایک دن اس نے یہ سنا کہ یسوع مسیح یہاں سے گزرنے والا ہے, یسوع مسیح اس شہر میں آنے والا ہے. اور ہم نے جب اس کی ایک فلم دیکھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ساری رات جو ہے وہ شخص کوڑیوں میں سے چوری نکلتا ہے, کیونکہ کوڑی نکلنے نہیں دیتے ہیں, کوڑی مارتے ہیں اور پھر ان کو اندر کر لیتے تھے. لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ چھپ چھپا کے کوڑیوں کی مار کھاتے, ان سے چھپتے چھپاتے وہ شہر کے لوگوں سے چھپتا چھپاتا, اور وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں دکھائی نہ دیتے ہوئے ایک بیمار شخص, ایک کوڑی شخص جو ہے وہ لوگوں سے بچتا بچاتا ہوا وہ یسوع مسیح کے پاس آ پہنچتا. اور کوڑی کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنا سر ڈھانپے اور اپنی ناک جو تھی وہ ڈھانپ کے رکھتا تھا, اپنا منہ ڈھانپ کے رکھتا تھا, اور جب وہ شہر سے گزرتے تو اونچی آواز میں پکارتے ناپاک ناپاک ناپاک, اور لوگ آگے سے ہٹ جایا کرتے تھے. اور یہ دستور تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. یہ اپنا منہ تو اس نے ڈھانپ لیا تھا کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, لیکن یہ چھپتا چھپاتا ہوا یہ یسوع تک پہنچ گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس شخص کی جد و جہد ہے, اس شخص کی جانفشانی ہے, اس شخص کے اندر لگن موجود ہے, شفا پانے کی لگن ہے کہ میں کسی طرح شفا پا جاؤں اور اپنے بیوی بچوں میں واپس چلا جاؤں, یا اپنے باپ کے گھر میں چلا جاؤں, اپنی ماں کو ملوں جا کر, اپنے باپ کو ملوں, اپنی بیوی کو ملوں, اپنے بھائیوں کو ملوں, اپنے بچوں کو ملوں, اپنی فیملی کو ملوں. اس کے اندر ایک کیا ہے؟ لگن موجود ہے. اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ جد و جہد پائی جاتی ہے, لگن پائی جاتی ہے یسوع سے ملنے کی. کسی نے بتا دیا, جو کھانا دینے آ رہے تھے انہوں نے بتا دیا کہ یسوع آج اس شہر میں آ رہا ہے, یا کل صبح وہ اس شہر میں آ جائے گا. تو وہ راتوں رات اپنے آپ کو اس شہر میں پہنچاتا ہے اور وہ یسوع کے پاس آ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا ہوا؟ بائبل میں سے بھی دیکھنا. کسی کو یاد ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کر ان کوڑ سمیت خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر جاتا ہے, اور بھیڑ جو ہے اسے دیکھ کر پیچھے پیچھے ہٹ جاتی ہے, جو گو کہ بہت لوگ ہیں ادھر. اور جب وہ ایک کوڑی کو دیکھتے ہیں کہ کوڑی مسیح کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ لوگ آگے سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوڑ نہ لگ جائے. وہ ڈر جاتے ہیں, اور وہ شخص سیدھا جا کر خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر جاتا ہے, اور وہاں پر وہ کہتا ہے, خدا یسوع مسیح پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے, اور وہ اسے کیا بیان کرتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کیا پوچھا؟ تو کیا چاہتا ہے؟
यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करने लगा, "ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर दे।" अगर तू चाहे तो, अगर खुदावंद यीशु मसीह चाहे तो। वो कहता है, खुदावंद मैं खुद से तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मैं कोड़ से भरा हुआ हूँ। मैं आज का कोड़ क्या है? हम गुनाह से भरे हुए हैं, गुनाह के कोड़ से भरे रहते हैं और हम मसीह के पास जाने की जद्दोजहद नहीं करते। हम सोचते रहते हैं कि कोई आए और हमें निकाले और हमें बोले और हमें कहे और कुछ, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शख्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, यीशु को पाने की मेहनत की है, शिफा पाने की मेहनत की है। क्या आज हम अपने गुनाह के कोड़ से शिफा पाने की कोशिश करते हैं? क्या हम ऐसे हैं? ये सवालिया निशान है और ये हमारे लिए एक सवाल है। अब हम दूसरे तरह के लोगों की तरफ चलते हैं। ये एक मफलूज है, इसे हम साथ साथ ही पढ़ेंगे, साथ साथ इससे हम सीखेंगे। 17वीं आयत में लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था। खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे थे? तालीम दे रहे थे। जहाँ भी हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीम देते हुए नजर आएंगे और तालीम देते देते ही वहाँ पर क्या होते हैं? मौजज़े हो जाते हैं। तालीम दे रहे हैं और फरीसी भी वहाँ पर मौजूद है, शरा के आलम भी मौजूद है, मुअल्लम भी मौजूद है। फरीसी कौन लोग हैं? फरीसी वो लोग हैं जो कलाम की तहकीक करते थे, जो कलाम की बहस करते थे, जो कलाम को देखते थे कि ये किस लिए लिखा, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया। ये वो लोग हैं। इसके बाद शरा के आलम है, जो शरीयत को लागू करने वाले होते हैं, जो शरीयत को जानते हैं, जो शरीयत को बताते हैं दूसरों को। और तीसरे लोग हैं मुअल्लम यानी उस्ताद। ये वो लोग हैं जो दूसरों को तालीम देते हैं, मज़हब की तालीम देते थे, शरीयत की तालीम देते थे और कलाम की जो बाइबल में लिखी हुई पेशन गोइयाँ हैं, जो सहीफ़े लिखे हुए थे, उन सब की क्या करते थे? तालीम देते थे। तो ये तीनों तरह के लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे। जैसे आज के ज़माने में भी 3, 4, 5 मिनिस्ट्रियाँ हैं, 5 खुदानी मिनिस्ट्रियाँ रखी हुई हैं, जिनमें उस्ताद भी शामिल हैं और मुअल्लम वो है फरीसी भी शामिल हैं और शरा के आलम भी शामिल हैं। शरा के आलम कौन है? जो आजकल बाइबल के स्कॉलर हैं, हम उन्हें शरा के आलम कह सकते हैं उर्दू में। और फरीसी वो हैं जो कलाम की तहकीक करते हैं और मुअल्लम वो हैं, उस्ताद वो हैं जो आपको तालीम सिखाते हैं और चरवाहे वो हैं जो आपकी निगहबानी करते हैं। जिस तरह से पास्टर हैं, ये पास्टर हैं और वो हमारे मेहमान पास्टर हैं, इस तरह से जो पास्टर लोग हैं ये चरवाहे हैं 5 तरह की खिदमतों में। उस वक्त ये 3 खिदमतें बहुत अहम थी। फरीसी थे, शरा के आलम थे और मुअल्लम थे। तीनों तरह के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कौन है वहाँ पर? इसके अलावा वो लोग हैं जो उस मफलूज को चरपाई पर डालकर उस जगह लेकर आए जहाँ पर यीशु मौजूद है। और आखिरी किस्म है जो खुद मरीज़ है, जो खुद मफलूज है, वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी भीड़। खुदावंद यीशु मसीह जब तालीम देते थे तो थोड़े लोग नहीं होते थे, बहुत बड़ी भीड़ होती थी और उस भीड़ के अंदर इतनी जगह मौजूद नहीं थी कि वो अपने मरीज़ को लेकर उस तक पहुंच जाएं। तो उन्होंने क्या किया? छत को उधेड़ा। जैसे ये हमारी छत है, ये उधेड़ी जा सकती है, शायद वो भी ऐसी ही छत होगी जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे थे। लिखा है कि उसने खुरपल को उधेड़ा, कोठे पर 9वीं आयत में हम देखेंगे, जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खुरपल में से उसके कटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। कितनी मुबारक हाली है कि हम किसी को लेकर यीशु के पास आ जाए। ये वो लोग हैं जो किसी को घेर कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए, खुद भी आए हैं और उस मफलूज को भी लेकर आ गए हैं। पहली किस्म कौन से लोगों की थी? जो खुद चलकर मेहनत कर कर यीशु के पास आ गए।
ये शख्स खुद चल नहीं सकता, मफलूज है, पाँव नहीं है, टांगे नहीं काम करती हैं, हाथ काम नहीं करते हैं, चरपाई से उठ नहीं सकता है। इसकी चरपाई उठाने में लोगों ने क्या की? मदद की। कितने बड़े इवेंजलिस्ट लोग हैं ये, कितने बड़े ये खुदा के खादम हैं जो लोगों को घेर कर खुदा के घर में लाते हैं। एक किस्म ये है, और एक किस्म वो है जो खुद मरीज़ है, जिसने ईमान रखा कि यीशु मसीह मुझे शिफा देगा। और वो बड़ी भीड़ जो तमाशा देख रही थी, भीड़ में सब लोग ईमान के साथ नहीं आते, भीड़ में सब लोग शिफा लेने नहीं आते, भीड़ में सब लोग यीशु को देखने नहीं आते। कुछ लोग फरीसी होते हैं जो तहकीक करने आते हैं क्या कर रहा है ये, कुछ लोग होते हैं जो शरअ के आलम होते हैं, जो शरअ के हिसाब से जांचना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस्ताद होते हैं, जो तालीमी लिहाज से जांचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो तमाशा देखने वाले होते हैं, देखें यहाँ बनता क्या खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, वेने अकीदा झगड़ा होता है ना, जेड़ा यीशु मसीह को मारता है, जेड़ा पत्थर मारता है। और कुछ लोग होते हैं जो यीशु मसीह को पत्थर भी मारने वाले हैं, और कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं जो उसका कलाम सुनते, कबूल करते और अपने दिलों में उतारते हैं। तो मुबारक लोग कौन हैं? जो उसका कलाम सुनते और उसको अपने दिलों में उतारते हैं। इसमें इस तरह के लोग भी शामिल हैं। तीसरी तरह के लोग जो हमने यूहन्ना की इंजील में हमने सिर्फ 2 आयतें पढ़ी उसकी, उसमें एक बीमार का जिक्र है, उसका ये नहीं बताया गया कि उसको क्या बीमारी है, उसका ये नहीं बताया गया कि वो मफलूज है या क्या मसला है उसका, लेकिन अंदाज़न ये हम कह सकते हैं कि वो भी मफलूज है। वो अपने आप चल नहीं सकता, वो अपने आप हौज़ में उतर नहीं सकता। जब खुदावंद का फरिश्ता आकर पानी हिलाता है तो वो खुद से जा नहीं सकता है, और वो इंतज़ार में बैठा हुआ है, और इंतज़ार करते करते उसे कितने बरस हो गए हैं? 38 बरस हो गए हैं। 38 बरस में एक बेटा पैदा होकर उसका बेटा भी 20 साल का हो सकता है। क्या ख्याल है? 20 नहीं तो 15 साल का तो हो ही जाएगा, है ना। अगर उसकी 20 साल में भी शादी होती है तो वो उसका बेटा 18 साल का हो जाएगा। अगर उसकी 22 साल में 23 साल में भी शादी होती है, जब भी उसका 14-15 साल का फर्स्ट बॉर्न पहला बच्चा हो सकता है, वो बेटी है वो बेटा है। इतना अरसा 38 साल एक उम्र का हिस्सा है। वो किस उम्र में वहाँ पर बैठा है और किस उम्र तक पहुँच चुका है, वो इंतज़ार ही करता जा रहा है, इंतज़ार ही करता जा रहा है, और कोई उसको बचाने नहीं आता। लोग आते हैं अपने अपने मरीज़ों को जल्दी से धकेल देते हैं, उसमें जब फरिश्ता आता है और शिफा पा के चले जाते हैं, कोई उस शख्स की परवाह नहीं कर रहा है, कोई उस शख्स की परवाह नहीं कर रहा। हम भी ऐसे करते हैं। क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि जो शख्स पढ़ा है ना पढ़ा ही रहने दिखाया है, इन्हें अंजी रहना है, हम उल्टी उसको लानत दे के आ जाते हैं, इन्हें अंजी रहना है। मेरे अजीज़ों, लानत नहीं बरकत के अल्फाज निकालिए मुँह से। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि उसे ऐसा ही नहीं रहना, बल्कि कोई अपना हाथ बढ़ाए और उसे निकाले। और वो 38 बरस तक इंतज़ार करता है वो शख्स। क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त है कि हम इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं कि कोई आए और हमें हौज़ में डाल दे, कोई आए और हमें बपतिस्मा दे, कोई आए और हमें तौबा करवाए, कोई आए और हमें आके तालीम दे? क्या हम इस कोड़ी की मानंद नहीं हो सकते जो रातों रात स्ट्रगल करके कोड़ियों में से निकल के और अपने आप को अकेला करके और यीशु के पास आ पहुंचे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं मेरे अजीज़ों। अगर हमें यीशु मसीह की लगन है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया है। इन 3 किस्म के लोगों में जितने भी लोग पाए जाते हैं, इनमें हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। ईद आई हुई है, ईद का मौका है। आजकल हमारे भी इधर ईद का ही मौका है, दूसरा दिन है, और उस वक्त भी यरूशलेम में ईद थी।
अचानक खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पहुँच गए और वो शिफा पा गई। अगर ईद ना होती, खुदावंद यीशु मसीह वहाँ ना जाते, तो हो सकता है वो 2 साल और वहाँ पड़ा रहता, और हो सकता है वो सारी उम्र ही वहाँ पर पड़ा रहता और मर जाता, और कोई उसको बचाने वाला ना होता। और क्या होता, जब वो ऊपर अदालत में जाता तो वो कहता कि खुदावंद मुझे तो किसी ने डाला ही नहीं कि मैं शिकार करूं। तो उसका खून किसकी गर्दन पर? उस जमाना के लोगों की गर्दन पर होता। आज भी ऐसा ही है। लोग गुनाह के कोड़ में मर रहे हैं, लोग गुनाह की अज़ियत में मर रहे हैं, लोग शराब पीते हैं, लोग चर्स पीते हैं, लोग भंग पीते हैं, और पता नहीं कौन कौन से नशे हैं, मुझे उनके नाम नहीं आते। बेटियां जो हैं वो गलत बेरारवी इख्तियार कर रही हैं, मुसलमानों से शादियां कर रही हैं, गुनाह कसरत से नाच रहा है हमारे घरों में। लेकिन हम कोई जद्दोजहद नहीं करते। हम चर्च आते हैं, आकर बैठकर गाकर दुआ करके चले जाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे खुदा ने किस लिए इस जगह पर रखा है, मैं क्यों इस चर्च में जाता हूँ, मुझे क्यों इस चर्च में खुदा ने भेजा हुआ है, मैं क्यों इस पास्टर के पीछे नमाज पढ़ रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, क्यों ये पास्टर यहाँ पर आते हैं, इनको क्यों भेजा हुआ है, और मैं ही क्यों हूँ यहाँ पर। जैसे अभी एक बहन यहाँ पर छोटी बच्ची तबला बजा रही थी, तो मुझे मूसा और हारून और उसकी बहन मरियम याद आ रही थी, और मैं बड़ी देर की इस बच्ची को खुश हो रही थी कि वो दफ बजाती थी और मूसा के साथ वो नाचती हुई गाती हुई बनी इस्राएल कौम को लेकर बियाबान में से गुजर रही थी। आज की हमारी औरत यहाँ पर नाचे तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन बनी इस्राएल कौम में मरियम नाचती हुई आगे जाती थी, और मरियम ने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया हुआ था, उसने पहले दिन से ही। जब मूसा पैदा हुआ, जब से ही उसने उस खिदमत के लिए उसको दे दिया था। जब उसने उस बच्चे को लेकर दरिया में बहाया तो वहाँ उसकी राखी करने लग गई। याद है ना ये कहानी सबको? हालेलुया हालेलुया। बेटियां बहुत काम करती हैं, बेटियां प्रस्तिश करती हैं, और मैं देख रही थी बेटियां इतनी प्यारी प्रस्तिश कर रही थी, और मेरे भाई जो थे वो चुप करके बैठे सुन रहे थे, सुन हुए थे। हम अपने आप को सुन कर लेते हैं, हम कलाम को सुनते हैं। वो कलाम गा रही थी, इतना खूबसूरत कलाम वो गा रही थी। वो जो गीत गा रही थी, आप जिन्ना शेर उन्ना दे पैर चूम दे, बहुत प्यारा वो गीत था, और उसमें वो सारी वर्सेस गा रही थी, सारे वाक़यात गा रही थी। इतना खूबसूरत गीत था, मुझे तो वो आता नहीं था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी साथ गाने की। जब भी वर्शिप हो, कोशिश करें आप साथ गाएं उसके, हम सुन ना हो जाए सुन के, बल्कि हम साथ मिलें। वो दफ बजाती, और लिखा है कि आगे आगे चलती थी, किसके? बने इस्राएल कौम के। और अगर हमारी ये बेटी दफ बजाती, तबला बजाती है, तो ये आगे आगे चलती है, आप इसके पीछे पीछे गाएं, इसके साथ मिलकर गाएं, तो खुदा का तख्त यहाँ पर लग जाता है। हालेलुया हालेलुया। में लिखा है जब साज और आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम इस कोड़ी पे नजर करें, तो कोड़ी क्या करता है? जद्दोजहद करता है, यीशु के पास आता है, गो कि ये अकेला है, गो कि ये अकेला शख्स है जो शिफा पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम और लोगों को भी ला सकते हैं। जिस तरह से उस 4 लोगों ने एक हवाले में, शायद मत्ती के हवाले में 4 लोगों का जिक्र है जिन्होंने उसकी चरपाई या पटोला उठाया हुआ था। उन 4 लोगों में भी हम शामिल हो सकते हैं। हमारे पास 3 तरह के बाइबल में पैटर्न मौजूद है, 3 तरह के नमूने मौजूद है, 3 तरह की बातें मौजूद है। हम इसमें से कोई भी काम कर सकते हैं। हम खुद से अपने आप को खुदा के हुजूर रख सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं। हम लोगों को घेर कर खुदा के घर में ला सकते हैं। ये हमारी खिदमत का हिस्सा बन जाए, और हमारी खिदमत जो है
सबसे बड़ी यही है कि हम लोगों को खुशखबरी सुनाएं कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो दुनिया में उसने काम किया, मौजज़ात किए, किताब मुकद्दस के मुताबिक उस पर सियासत हुई, किताब मुकद्दस के मुताबिक उसको कोड़े लगे, उसकी जान गई, सलीब पर चढ़ा, और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो कब्र में उतारा गया, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहाँ चला गया? आसमान पर चला गया, और खुदा कादिर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो फिर से आने वाला है। अगर हम सिर्फ इतनी सी बात हम लोगों को बताते हैं कि यही खुशखबरी है, बहुत बड़ी कहानियाँ डालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात अगर आपको अकीदा आता है तो अकीदे में ये सारी चीज़ें मौजूद है, अगर वो हम याद कर लें और किसी को बताने के लिए आपके पास ये बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं आप जाके गैर मसीहों में बीच में जाके आप ये बात बताएं, अगर खुदा आपको मौका देता है तो ज़रूर बताएं, लेकिन अपने लोगों को जो गुनाह में मर रहे हैं, जो मसीह को नहीं जानते, मसीही कहलाते हुए मसीही नहीं है, वो मसीह के वो नाम पर धब्बा है, वो मसीह के नाम पर क्या है? धब्बा है, काला धब्बा लगा हुआ है। वो मसीही कहलाते हैं और वहाँ खड़े होते हैं, चौक में खड़े होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं, चर्च से भरी हुई हो या हीरोइन से भरी हुई हो, तो वहाँ पर खड़े होकर झूल रहे होते हैं, जहाज बने होते हैं। क्या मसीह का नाम जलाल पा रहा होता है उनके वसीला से? नहीं, बल्कि मसीह का नाम बदनाम हो रहा होता है। लोग क्या देख के वो कसाई जान रहे हैं, इतनी हकारत से लोग बोलते हैं, इतनी हकारत से लोग हमें साई चूड़ा कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने हुलिये ऐसे बना रखे हैं। अगर हम ये अपने हुलिये लेकर यीशु के पास चले जाएं, हमारे पास जैसा भी कोड है, गुनाह का कोड है, बदकारी का कोड है, हमारे पास नाअहली का कोड है, हमारे पास किसी किस्म का भी कोड है, नशे का कोड है, तो हम उसको लेकर यीशु की सलीब के आगे नहीं डाल सकते। हमें उसको यीशु की सलीब के आगे डालना है और हमें कहना है अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह हमें पाक साफ नहीं करेंगे? वो हमें शिफा देने में आदिल है। यीशु का लहू हमें हर तरह के गुनाह से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूँ, और अगर कोई मेरे पास आता है तो वो कभी भी भूखा या प्यासा नहीं रहता। इसके अलावा अगर हम पुराने अहदनामे में जाएं तो नुमान कोड़ी हमें नजर आता है। अगर हम कोड़ी का ही जिक्र कर लें तो और बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन नुमान कोड़ी एक बहुत बड़ी मिसाल है यहाँ पर कि नुमान कोड़ी को एक छोटी जितनी बच्ची है, इतनी बच्ची ने सिर्फ 2 बातें कही। उसने कहा अगर ये मेरे आका के यहाँ होता या मेरे मुल्क में होता तो मेरा आका वहाँ पर शिफा था। और वो लड़की असीर हुई है। असीर लड़कियाँ जो हो जाती थी उनके साथ मालिक या आका जैसा भी सलूक चाहते थे वो करते थे, लेकिन वो उसने अपनी बीवी को दे दिया और वो उसकी बीवी हुई और वो उसके साथ घर में काम करवाती थी और उस शख्स को कोड़ हो गया। वो एक जनरल है फौज का और उसे कोड़ है, और जब उसने सुना, उसकी बीवी ने बताया कि वो बच्ची ऐसी ऐसी बात कर रही है, तो वो बड़ा खुश हो गया कि मुझे शिफा मिलने वाली है। और उसने खुदा ने उस बच्ची के वसीला से सल्तनतें हिला दी। 2 सल्तनतें हिल गई उस बच्ची के 2 जुमलों पर। जब उसने उसको बताया अपनी बीबी को और बीबी ने अपने शौहर को बताया और शौहर ने बादशाह को खत लिख दिया और उस खत पे बादशाह लाल पीला हो गया। उसने कहा ये मुझे शिकस्त देने के लिए, लड़ने के लिए ऐसा बहाना ढूंढ रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। और जब एलिया नबी को पता चलता है तो वो कहता है आने दे, ये जान ले कि इसराइल में एक खुदा। और जब उसे लेके जाता है, वो लेता है बहुत सारे, वो रथ लेके आता है, उसके ऊपर बड़ा सामान लाद के लेके आता है, बहुत सारे नौकर चाकर उसके साथ, सारे एक जनरल है, उसका प्रोटोकॉल है, वो अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ आता है और हदिया लेकर आता है। और जब वो उसे कहता है जा 7 गोते मार दे जर्दन में, तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है।
एक दफ़ा ऐसा भी होता है, हम पादरी साहब के पास दुआ करने के लिए जाए ना, पादरी साहब कहते हैं ना अच्छा जा मैं कर देती है दुआ, होता है ना ऐसे। कई दफ़ा ऐसे पादरी साहब कहते अच्छा जा मैं दुआ कर देती है, और हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शर्मिंदा से हो जाते हैं, बिल्कुल अपने अंदर उदास हो जाते हैं और लाल पीले भी गुस्से से हो जाते हैं। दस मैं पादरी साहब ने कैसे दुआ कर तो मैनू आमी क्लास में। इसी तरह बिल्कुल वो शख्स भी हुआ और उसने ऐसा किया, लेकिन उसका समझदार नौकर उसने कहा क्या वो तुझे कोई बड़ी बात कहता है तो तू ना कर, जो कुछ ये कहता है करके देख ले। वहां पर क्या बन गया, उसका नौकर उसके लिए एक इवेंजलिस्ट बन गया, उसको घेर के लाने वाला बन गया। कहाँ पर, दरिया पर, पानी में आजा, यर्दन में आजा, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, ये वही दरिया है। और उसके दरिया थे ओबामा और बाना और पता नहीं कौन सी नदियाँ थी, फर और नदियाँ थी वहाँ पर। तो वो कहता है उनसे ये बढ़ गए, यहाँ पर तो गंदा पानी, वहाँ तो बड़ा साफ पानी है। उसका नौकर कहता है नहीं तो इसी में मार होता, और वो 7 गोते मारता है और शिफा होती है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम कर सकते हैं ऐसा नौकर होते हुए? कर सकते हैं। हम अपने आका को, अपनी बीबी को, अपने मालिक को कह सकते हैं कि अगर तू मेरे पास्टर के यहाँ होती या मेरे पास्टर से दुआ कराती तो तेरे लिए ऐसा अच्छा हो जाता। और जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, और वो एक बड़े इवेंजलिस्ट बन जाते हैं गैर कौमों के लिए, और जो पास्टर दुआ करते हैं वो एक बड़े नबी बन जाते हैं, और खुदा उनके ज़रिए से काम करता और अपना जलाल ज़ाहिर करता है। हम में से भी, आप में से हर एक इस काबिल है कि वो ऐसा काम कर सके, जहाँ कहीं हमें मौका मिले। मैं कराची में एक इलाका है, गंज पहाड़ का इलाका है, बहुत बड़ा, गंज पहाड़ का एक बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ पर भी ऐसे क्रिश्चियन आबादी है, तो वहाँ पर मैं कलाम सुना रही थी। एक बहन ने मुझे अपना वाक़या बाद में बताया। उसने कहा कि मेरी जो, जहाँ मैं काम करती हूँ जिस घर में, वो उसके घर में काम करती थी, और उसने कहा कि वो बीमार हो गई औरत, और मैंने उससे कहा कि मैं तेरे लिए दुआ करूँ। तो वो चूँकि अमीर औरत थी, उसने कहा ये करो मेरी दुआ कर, मैं चूड़ियाँ दी औरत। वो फिर बीमार, उसने फिर उसकी जान नहीं छोड़ी। उसने कहा क्या बीबी मैं आपके लिए दुआ करूं? कहती जब मैंने 3 बार कहा तो उसने कहा कि कर दे दुआ मेरी। और वो कहती है कि जब मैंने उसके ऊपर दुआ की और वो औरत शिफा पा गई, और तब उसने जाना कि मसीहों का खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा कितना बड़ा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो अकेले कोड़ी को भी शिफा दे देता है, वो लोगों को लाए हुए मफलूज को भी शिफा दे देता है, और वो जिसको कोई नहीं पूछता 38 बरस तक जो इंतज़ार कर रहा होता है उसको भी वो शिफा दे देता है। वो तालीम देता देता ही सारे काम कर जाता है। आए हम अपने दिलों में सोचें, आज इस बात पर